Hello everyone. Today we discuss about the limiting reagent. This is the last lecture of basic principle of chemistry. Limiting reagent means the reactant which is completely consumed in the reaction. The reactant which is consumed completely in reaction is known as the limiting reagent. The reactant which is completely consumed in reaction is known as limiting reagent, while the other reagent which is not consumed completely is known as the excess reagent, and other one is the excess reagent, not completely consumed. Clear? And the extent of reaction is decided on the basis of the limiting reagent. The extent of reaction decided on the basis of limiting reagent. Clear? Two types of reagents are available in the reaction, in which one is the limiting reagent and other is the excess reagent. Those type of reactant which are completely consumed completely are known as the limiting reagent, and the formation of product decided, or we can say the formation of product on the basis of the limiting reagent. तो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रेजेंट पे डिपेंड करेगा. एंड द अदर रेजेंट देन लिमिटिंग रेजेंट इज नोन एज द एक्सेस रेजेंट. बट हाउ कैन वी कैलकुलेट द लिमिटिंग रेजेंट? आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट आपके लिए कैसा है? लिमिटिंग रेजेंट है. सो वी कैन से द L इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ moles of reactant and stoichiometric coefficient, and divide by stoichiometric coefficient. The reactant which has the less value of L, the reactant which has the less value of L will be limiting reagent. आपके पास जो दो रेजेंट है उन दोनों रेजेंट के लिए आप क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड डिवाइड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देन लेस वैल्यू हैविंग ऑफ L रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रेजेंट. अब इसको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से ही समझ सकते हैं. So we take different types of example by which we can identify the limiting reagent. Our first question is, the question is given 2 mole of NaOH combined with 1 mole of H2SO4, then it gives the 1 mole of sodium sulfate and 2 mole of H2O. The amount of NaOH given which is the 40 gram and amount of H2SO4 is the 98 gram. So first we calculate which reagent is the limiting in the reaction. Then firstly you prepare the number of mole. सबसे पहले आप क्या prepare करोगे? number of mole prepare करोगे. Then 40 by amount in gram and the molar mass of NaOH is also 40. This is the 90 gram and the molar mass of H2SO4 is also at 98. Then it is the 1 mole and this is also the 1 mole. दोनों ही कितने थे मोल है? 1 मोल है. लेकिन अभी आपके पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आए हैं. लेकिन अब क्या करेंगे अपन? वी वांट टू कैलकुलेट द विच रेजेंट इज द लिमिटिंग रेजेंट. देन लिमिट L, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L. लेस वैल्यू हैविंग ऑफ L रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रेजेंट. दिस इज द 1 बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज द 2, इट इज द 0.5. इज दैट क्लियर? और आपके पास ये 1 है एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2SO4 इज द 1. देन दिस इज द लिमिटिंग रेजेंट एंड दिस इज द एक्सेस रेजेंट. एक्सेस रेजेंट नॉट डिसाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. The extent of reaction depends upon the limiting reagent, or we can say
द लिमिटिंग रेजेंट डिसाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट। मतलब आपके पास ये डिसाइड करेगा कौन, NaOH डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए आपके पास ये 1 मोल दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, सोडियम सल्फेट, मास ऑफ सोडियम सल्फेट कैलकुलेट करना है। बट ओनली 1 मोल ऑफ NaOH इज अवेलेबल। देखिए लिमिटिंग रेजेंट यही है, तो यही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? तो आपके पास केवल इसका 1 मोल अवेलेबल है। लुक फॉर टू द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब मैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की तरफ देखता हूँ तो क्या पाता हूँ, 2 मोल ऑफ NaOH गिव्स द 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या कह रहे हैं अपन, 2 मोल ऑफ NaOH कितना दे रहा है आपको, 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, 1 मोल ऑफ Na2SO4। इज दैट क्लियर? ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की स्टडी है यहाँ पे, क्लियर? लेकिन इसका कितना मोल अवेलेबल है आपके पास, 1 मोल अवेलेबल है। देन 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH से कितना मोल Na2SO4 बनेगा, इट इज द 1/2 मोल ऑफ Na2SO4। इट मीन्स वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम सल्फेट विच इज फॉर्म्ड बाय द 1 मोल ऑफ NaOH। क्लियर? यानी कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, ये कितना मोल बनेगा आपके पास, N इज इक्वल टू 1/2 एंड व्हाट देन कैलकुलेट द मास, वी नो दैट N इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। क्लियर? तो आपके पास आप क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल आपको दिया हुआ है, W इज इक्वल टू N इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज द 1/2 एंड मल्टीप्लाई विद द मोलर मास ऑफ द सोडियम सल्फेट and molar mass of sodium sulfate is the 142, then we get the 719 ग्राम। इज दैट क्लियर? तो आपने इस तरह से क्या कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ सोडियम सल्फेट विच इज डिपेंड्स अपॉन द, जो Na2SO4 है उसका फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रेजिएंट पे डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द NaOH। मतलब इस सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन को रिलेटेड करेंगे अपन NaOH से, और वाटर के फॉर्मेशन को भी रिलेटेड करेंगे अपन किससे, NaOH से। क्लियर? तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 मोल ऑफ NaOH गिव द 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ NaOH प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2। इज दैट क्लियर? तो इसका 1 मोल है तो कितना प्रोड्यूस होगा आपके पास, 2/1, 2/2 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। कितना प्रोड्यूस होगा, 1 मोल ऑफ H2। इज दैट क्लियर? और आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। देन H2 कितना बना है आपके पास, N इज इक्वल टू 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है आपके पास। We know that density is equal to mass by volume and volume कैलकुलेट करना, इट मीन्स क्या होगा, mass by density, density of water is the 1 ग्राम पर ml। क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल। वी नो दैट इट इज द 18 ग्राम, N is equal to W by molar mass, N into M gives amount of W, molar mass 1 into 8 is equal to कितना हो गया आपके पास, W is equal to 18 ग्राम। कितना आया आपके पास, 18 ग्राम। क्लियर? then it gives the 18 by this is the 18 ग्राम and 1 ग्राम और ml किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ, ग्राम टू ग्राम कैंसिल, then it gives the 18 ml of H2। इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 24 into 10⁻23 molecule of SO2 gas react with 1 to 8 gram of O2 gas, then find mass and volume of SO3 gas which is limiting reagent, amount of excess reagent left। क्लियर? देखो SO2 गैस के आपको क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज द 24 into 10⁻23 एंड इट इज द 1 to 8 ग्राम। ये कितना दे रखा आपको, 1 to 8 ग्राम। देन फर्स्ट क्या करना होगा अपने को, नंबर ऑफ मोल्स प्रिपेयर करने हैं। वी नो दैट N by Na,
number of molecule divided by Avogadro number, then it convert into number of mole. It is the 24 into 23 and it is the 6.02 into 10 to power 23. अब 6.02 को मैं क्या मान लेता हूँ, 6.0 ही मान लेता हूँ, ये कैंसिल आउट हो रहा है एक दूसरे से. इट मीन्स द नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू द 4, यानी कि SO2 गैस के कितने नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4. दिस इज द 128 ग्राम. क्लियर. देन नंबर ऑफ मोल इज द 128 डिवाइड बाई 32 ग्राम पर मोल, देन इट गिव्स द N इज इक्वल टू 4 mole. This is also obtain the 4 mole and this is similar with the mole of SO2 gas. Is that clear? Then decide the limiting reagent. LR is equal to 4 mole divided by 1 and this is the 4 mole stoichiometric coefficient is the 1 by 2. It is give the 8 and it is give the 4. It means SO2 gas is the limiting reagent. It means SO2 gas is the limiting reagent. It means the extent of reaction depends upon the SO2 gas. It means प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, SO2 गैस डिसाइड करेगी. क्लियर. फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रेजेंट. अब आपको इस एक्सेस रेजेंट आपके पास ही हो गया, दिस इज द एक्सेस रेजेंट. इस पे डिपेंड नहीं करेगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रेजेंट पे डिपेंड करेगा. क्यों, एक सिचुएशन के बाद में आने के बाद में खत्म हो जाएगा, देन रिएक्शन खत्म हो जाएगी आपकी. क्लियर. तो देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, SO3 गैस, SO3 मास एंड वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस. एक तो क्या कैलकुलेट करना है, इसका आपको मास कैलकुलेट करना है. क्लियर. और सेकेंड थिंग इज द वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस, वॉल्यूम ऑफ SO3 गैस एंड मास ऑफ SO3 गैस कैलकुलेट करना है. क्लियर. देन 1 मोल ऑफ SO2 गिव्स द 1 मोल ऑफ SO3 गैस. इज दैट क्लियर. SO2 गैस का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है किसको, 1 मोल ऑफ SO3 गैस को. देन इट इज ऑलरेडी द 4 मोल, तो ये 4 मोल है तो कितना प्रोड्यूस करेगा, इसको 4 मोल ही प्रोड्यूस करेगा. देन इट इज द, इट मीन्स 4 mole of SO2 gas produced. Then 4 mole of SO2 gas obtained. Is that clear? We know that N is equal to W by molar mass. N is equal to W by molar mass. We want to calculate the amount in mass, then we multiply the number of mole with molar mass. Then it gives W is equal to N into molar mass. Number of mole is the 4 and molar mass of SO3 gas is the 80. Then it gives the 320 ग्राम. क्लियर. तो अमाउंट ऑफ SO3, मास ऑफ SO3 कितना ऑब्टेन होगा आपको, 320 ग्राम. क्लियर. नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करें अपन, वी नो दैट N इज इक्वल टू V बाई 22.4. दिस इज गिव्स इन लीटर. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. देन वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू N इंटू 22.4. दिस इज मल्टीप्लाई 4 multiply with 22.4. It gives the result. Is that clear? Third question is the second, which is the limiting reagent. We already decided which is the limiting reagent. Amount of excess reagent left. आपको क्या करना है, amount of excess reagent, ये भी देखना है कि amount of excess reagent कितना बचा है आपके पास. Then 1 mole of SO2 combined with 1 by 2 mole. Is that clear? इट मीन्स आपके पास इसका 1 मोल है तो कितने के साथ कंबाइन होगा, वो 1 by 2 मोल ऑफ O2. यानी कि मैं कह सकता हूँ सिंस 1 मोल ऑफ SO2 कंबाइंड विद 1 by 2 मोल ऑफ O2 गैस. क्लियर. अब SO2 गैस का कितना मोल प्रेजेंट है आपके पास, 4 मोल प्रेजेंट है. सो वी कैन से 4 मोल ऑफ SO2 गैस कंबाइंड विद 1/2 into multiply with 4 mole of O2. It gives the 2 mole of O2. अब देखिए आप यहाँ से कि SO2 का O2 के साथ, जब SO2 1 मोल था तो O2 कितना था, O2 कितने मोल O2 के साथ कंबाइन हुआ, 1/2 के साथ. क्लियर. जब 4 मोल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट इन, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए गए उनको आपने नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कन्वर्ट किया, तो मैं से कह रहे 4 मोल ऑफ SO2, 4 मोल SO2 यूज किया जाएगा तो O2 कितना कंबाइन होगा, 2 मोल. तो
original amount, this is the amount of O2 which is consumed in the reaction. This is the amount of O2 that consumed in reaction, that consumed in reaction, जो रिएक्शन के अंदर क्या हो चुकी है, कंज्यूम्ड हो चुकी है. एंड व्हाट इज द रियल अमाउंट, द रियल अमाउंट ऑफ O2 इज द 4 मोल. क्लियर. इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाई इनिशियल अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट. इज दैट क्लियर. इनिशियल अमाउंट कितनी है आपके पास, 4 मोल है. कितना कंबाइन हो गया ये, 2 मोल. दिस इज द 2 मोल ऑफ O2 लेफ्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर. इट मीन्स वी कैन से 2 मोल ऑफ O2 लेफ्ट इन रिएक्शन मिक्सचर. क्लियर. इसने क्या पूछी है, अमाउंट पूछी है. इट मीन्स इसको आपको ग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा. क्लियर. देन N इंटू मोलर मास इज इक्वल टू W. इट इज द 2 मोल मल्टीप्लाई विद 30 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 64 ग्राम. तो अमाउंट ऑफ O2 कितना रहा होगा रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, 64 ग्राम रहा होगा. दिस इज द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटिंग रीजन. क्लियर. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 मोल ऑफ H2 गैस react with 0.5 mole of Cl2, then find number of moles of HCl. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. देखिए आपके पास H2 गैस रिएक्ट विद Cl2 गैस, then it gives the 2 mole of HCl. And the number of mole also given in the question. 1 mole, it is the 1 mole. it means जो N की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 1 mole है. And we have the 0.5 mole of Cl2. Then number of moles of HCl आपको कैलकुलेट करना है. इज दैट क्लियर. देन आप इसमें L कैलकुलेट कीजिए. दिस इज द 1 मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज ऑल्सो द 1 मोल. इट इज द 0.5 एंड स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज द 1. इट इज द 0.5. क्लियर. इट मीन्स 0.5 इट इज द लिमिटिंग रेजेंट एंड इट इज द एक्सेस रेजेंट. It means formation of HCl, formation of product depends upon the number of moles of Cl2 gas. Is that clear? देखो 1 मोल से कितना बन रहा है आपके पास, 2 बन रहा है. 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ Cl2 gives 2 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl. Is that clear? And how many moles are present? It is the 0.5 mole. So we can say 0.5 mole of Cl2 gives 2 into 0.5. It means 1 mole of HCl. 1 mole of HCl gas. अब इसमें वॉल्यूम मास आगे पूछता तो अपन क्या कर सकते थे, इजीली कैलकुलेट कर सकते थे. इज दैट क्लियर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, कंब्यूशन रिएक्शन से लिया है. और क्या कह रहा है, 4 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन required 16 liter of O2 to produce 12 liter of CO2, then find हाइड्रोकार्बन. आपको उस हाइड्रोकार्बन का पता लगाना है, हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना है. वी नो दैट CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 gives the XCO2 प्लस Y/2 H2. इज दैट क्लियर. मैंने आपको पहले जब रिएक्शन थी तो बैलेंस करके बताया था. अब देखिए ये क्या कह रहा है आपके पास, 4 लीटर हाइड्रोकार्बन कम रिक्वायर्ड 16 लीटर ऑफ O2. कितने लीटर की जरूरत है इसको, 16 लीटर ऑफ O2 की जरूरत है. देन इट प्रोड्यूस द 12 लीटर ऑफ CO2, 12 लीटर ऑफ CO2. इज दैट क्लियर. देखिए फर्स्ट आपके पास ये x है, ये x देखिए यहाँ जा रहा है. इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 आ जाएगा. इज दैट क्लियर. इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 3. मेरे पास x की वैल्यू कितनी है, 3. और देखिए ये 4 लीटर कंबाइन हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, यानी कि 4 into 3.
sorry 4 into 4 it gives the 16 liter. It means x plus y by 4, it means x plus y by 4 is equal to 4. यही तो होना चाहिए ना भाई. देखिए ये 4 लीटर था और ये 12 लीटर दे रहा है. इट मीन्स यहाँ कितना था, यहाँ 3 था तो वो 3 यहाँ आया होगा. क्लियर. तो 4 इंटू 3 तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3. सेकंड देखो ये 4 लीटर कंबाइन हो रहा है इसके साथ, ये 4 लीटर कंबाइन हो रहा है 16 लीटर के साथ. यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 4 के इक्वल हो जाएगी. अब यहाँ से क्या करना है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इट मीन्स x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 और x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 3 पुट कर सकता हूँ. तो सोल्व करो इक्वेशन को. ये हो गया कितना मेरे पास 4, ये हो गया 12 है प्लस y इज इक्वल टू 4, 12 है प्लस y इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4. तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है. इट मीन्स इट इज द C3H4. This is the hydrocarbon. Clear? And this is the end of the basic principle of chemistry. If some questions are left, then we try to solve it. Otherwise, we start the new chapter atomic structure. Thank you and have a nice day.